Good morning, class 11. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to discuss a very last part of this chapter, and that is the about the graph. Today we are going to study about the different types of a graph that we use in this chapter. कौन कौन से ग्राफ होते हैं, कैसे उनका वेरिएशंस होता है, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं और कैसे उसको हम रीड करते हैं, आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं. But before starting the chapter, let once we recap about the topic what we have learned in our previous class. हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा और क्या क्या डिस्कस किया. Let's once have a small recap of that thing. बेटा, before starting this chapter we have started with the rest and motion. हमने टॉपिक को स्टार्ट किया रेस्ट और मोशन से. वहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हाउ वी कैन ऑब्जर्व द बॉडी इज इन अ रेस्ट और बॉडी इज इन अ मोशन. बॉडी हमारी रेस्ट पर कब होती है और मोशन पे कब होती है. उसके बाद हमने चेंज इन अ पोजीशन के बारे में पढ़ा. मीन्स इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन देन वी कैन से दैट इज इन अ मोशन. जब बॉडी मोशन करता है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. देन आफ्टरवर्ड कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट. We have talked there, we have discussed there that displacement is a vector quantity and distance is the scalar quantity. After continuing that part, we have learned there about the difference between the velocity and speed. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक्सेलरेशन को जाना कि हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन. उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द रिटार्डेशन. द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन. फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस को डिराइव किया. नाउ बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफ्स. आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. हम ग्राफ को 2 वेरिएंट्स में ड्रॉ करेंगे. एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ मीन्स अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ एन बॉडी विद द टाइम. दैट इज कॉल्ड द पोजीशन टाइम ग्राफ. Now we are going to start the discuss about the how many types of the position time graph we have here. We have 3 types of a graph we can see here on the figure. We have 3 types of a graph. Okay, let me start with this topic. Okay class, now let me discuss about the graph here. Today we are going to discuss about the graph here. The first graph you can see here on the board is given here for the stationary object. Before discussing about this graph, we should know about the what is the stationary object, stationary thing. When we have started this chapter, we have learned about the stationary object. हम लोगों ने stationary object के बारे में पढ़ा था. The body is in a rest position. अगर body rest position पे होती है तो body we can say the body is in a stationary position. रुका हुआ है. How we can define the stationary object in the case of a graph? When we see the graph here, the graph is given between the position and a time is drawn here. The graph is drawn between the position and a time. In this case, the graph we have drawn here is the straight line graph. Means we can say here the time is changing here but the position of the object is stationary. इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हमारा ग्राफ यहाँ पर हम देखें तो एक टाइम इंटरवल धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स द ग्राफ इज इन अ स्टेशनरी पोजीशन. हमारा ग्राफ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है और वो रुका हुआ है. इट मीन्स टू रिप्रेजेंट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर ये हम कोई पोजीशन सपोज कर रहे हैं तो दिस इज अ 5 मीटर. अगर ये हम 5 मीटर सपोज करते हैं तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में 5 मीटर पे था, 2 सेकेंड में भी 5 मीटर पे है, 3 सेकेंड में भी 5 मीटर पे है. इट मीन्स time is moving there, time is varying there, but the object is in a stationary position. Object वहाँ पे हमारा रुका हुआ है. So we can identify this as a stationary object graph. Let me see the another graph that is for the uniform motion. In the case of the uniform motion means if we talk about the uniform का मतलब क्या होता है कि equal rate change at the equal time interval. Means the body is changing its position equally at the equal time interval. That is called the uniform motion. The graph is in a constant slope. हमारा ये जो ग्राफ है वो एक कांस्टेंट स्लोप पर है. कांस्टेंट स्लोप का मतलब कि इफ वी टॉक अबाउट द एंगल हियर, द एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट. यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन पे इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल चेंज इन अ पोजीशन होता है. मीन्स
पोजीशन इक्वली चेंज होता है एट द इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. Now, if we can see here in the graph, if the body is at the constant slope, we can say the body is in the uniform motion. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ऐसे वेरिएबल स्लोप्स का होता है. मीन्स if we talk about the slope here will be the different slope. In this case, here will be the different slope, and here will be the different slope. In each condition, we have a different type of slopes there. Slope क्या होता है? If we talk about the slope is the trigonometric angle. We can say the angle of a tan theta that we use to define the slope here. अगर हम स्लोप यहाँ पे बात करते हैं तो tan थीटा कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा, एंड दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्लोप हियर. ये हमारा स्लोप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है. बट इन द केस ऑफ द वेरिएबल ग्राफ we can't identify slope here. So this is the difference between the uniform motion and the non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन के केस में बेटा ध्यान रखना कि ग्राफ हरदम एक स्ट्रेट लाइन बनता है. वो स्टार्टिंग पोजीशन से भी हो सकता है, वो कहीं दूसरी जगह से भी हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म ग्राफ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था. यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन सर्च द वीडियो देयर. You will definitely get the video of the last class. There we have discussed in a very brief manner what is the acceleration and what is the retardation. हमने एक पूरे वीडियो में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में ही सिर्फ बात किया है. वहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, रिटार्डेशन कैसे फाइंड करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस देयर. Now in the case of the position time graph, how we used to represent the acceleration. एक्सेलरेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना हो तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? वेलोसिटी इज द चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. चेंज इन अ टाइम मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है. बट इफ वी डिफरेंशिएट वंस अगेन द वेलोसिटी, वी विल गेट द एक्सेलरेशन. It means acceleration is equal to dv upon dt. Means rate change of a velocity at the time is called the acceleration. वहाँ पर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन क्या होता है, lt की पावर -2. ओके, so that is all the information about the acceleration. You can go through the video and search there. If we talk about the acceleration here, in the case of the displacement time graph, we can see here the acceleration is the double differentiation of the displacement, double differentiation of the position, that is called the acceleration at the time. अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा यूनिफॉर्मली स्लोप अप साइड होता है. हमारे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ऊपर की तरफ होता है इन द केस ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बट इन द केस ऑफ द रिटार्डेशन इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, और एक समय के बाद वो जाकर के हमारा जीरो हो जाता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्राफ when we draw between the position and the time. That is all about the graph that we have seen here in the board. Okay, now let we move to the another type of a graph, and that is the acceleration time graph. And this is the last topic of this chapter. After this we will complete this chapter, and we will again move to the another part of this second part, that is the uniform motion in a plane. Okay, let me see the another type of a graph, that is the वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अभी तक हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके क्लास. नाउ द अनदर टाइप ऑफ द ग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वी कैन सी हियर यू कैन a different type of a graph we have made here. The first one is here the velocity time graph between the velocity and time, that is for the uniform motion. Again, as we have discussed in the last graph, what is the uniform motion, we can see again here the body is moving with the uniform motion here. यहाँ पे बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्ट्रेट ग्राफ है. यू कैन सी हियर टाइम वेरिएंट हो रहा है, टाइम हमारा बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है. अगर एक बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है थ्रू आउट द होल ड्यूरेशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन. ओके. Another type of the graph is here, the uniform accelerated motion. When the body is in a uniform acceleration, एक uniformly accelerated हो रही है. You can see here, the body is moving with the constant velocity. यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है. सो वी कैन से द बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. मीन्स बॉडी हमारी एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. यहाँ पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, इफ वी डिफाइन अबाउट द स्लोप, यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें, व्हाट इज द स्लोप हियर? द स्लोप, इफ वी फाइंड द स्लोप हियर, वी विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. यानी एक चीज ध्यान देना, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, देन वी विल फाइंड द स्लोप देयर. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें बोला जाए तो हम वहाँ पे स्लोप फाइंड करते हैं. But if we need to find the displacement from the velocity time graph, we need to find the area under the graph. बहुत ध्यान से सुनना, ये हमें न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम स्लोप फाइंड करते हैं. अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं. अभी एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया, हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सो दैट इज द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कोई वेरिएबल टाइप के ग्राफ जो बनेगा हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा. सो दैट वाज द अबाउट ऑल थिंग अबाउट द ग्राफ. Now students, we are going to talk about the some special type of a graph. कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें. You can see here the graph is between the velocity and the time. If the graph is going downwards, we can say that is the retardation process. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पढ़ा था, वैसे वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स द बॉडी इज रिटार्डिंग देयर, और एक टाइम पर आकर के बॉडी हमारी यहाँ पे रुक जाती है. The body is in a static position. When the body is carrying the retardation, the body will be the slow down and after some times it will be the static in a position. हम एक कार को लें, कार को धक्का लगा के छोड़ दें, कुछ समय बाद वो जा करके रुक जाती है. अब उसका रीज़न डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ द हैवी मास, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, लॉट ऑफ रीजन इज देयर. बट इफ द बॉडी becomes a static with decreasing the velocity, that is called the retardation process. If we talk about the upper part of a graph, this is the uniform acceleration. Means पहले बॉडी जाके रुकती है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर जाती है. अगर ये ग्राफ हमारा ऐसे ड्रॉ कर दे स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होने के बाद यहाँ पर इस मोशन पे, इस वेलोसिटी पर कांस्टेंट हो जाती है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है. Now let me see the another last type of a graph is here, that is the acceleration time graph. We can see here that is the graph for the uniform acceleration, and here the acceleration is moving constantly. एक constant variation से acceleration हमारा हो रहा है बॉडी में. चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि how we can use this graph in the question paper. क्वेश्चन पेपर में कैसे ग्राफ का यूज किया जाता है, वहां पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में. लेट मी सी हियर द ग्राफ इज बिटवीन द वेलोसिटी टाइम. इट इज हियर लाइक दिस, देन दिस इज द ग्राफ हियर. दिस वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड. दिस वन इज हियर 2 सेकेंड. This one is here 4 second, and this one is here 5 second. Now you can see if we discuss about the variance of the graph, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. इट मीन हियर इज द रिटार्डेशन. ये हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को. और ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटार्डेशन को. इफ वी टॉक अबाउट द ग्राफ, अगर हमसे पूछा जाए what is the acceleration of a body, पहला पार्ट, what is the acceleration, how we can define the acceleration? Acceleration will be the slope of graph.
slope of graph. We can define the acceleration. How we can find the acceleration? With the help of a tan theta. What is the tan theta here? Perpendicular upon base. The perpendicular distance is here, tan theta is here 5 and base is here 2. That is the tan theta. So we can say the slope is here, theta is equal to tan inverse 5 by 2. This value is here of the acceleration. इतनी वैल्यू एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, इस एक्सेलरेशन से बॉडी अपना कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सेकंड अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है? इफ वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वी विल फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. हम ग्राफ के अंडर में जो भी एरिया है उसको हम फाइंड कर लें. अगर हम ग्राफ के अंडर में एरिया को फाइंड कर ले वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द ऑब्जेक्ट. हमारे यहाँ पे 3 फिगर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. 3 इसमें 2 ट्राइंगल है, एक हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल है. सो वी कैन से हियर व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस, दिस इज द बेस हियर, बेस इज हियर 2 सेकंड. सो वी कैन से इट इज द 2 इनटू हाइट इज हियर 5 प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल व्हाट इज हियर, दिस इज द 4 एंड दिस वन इज द 2. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 एंड ये हाइट क्या हो जाएगा? 5. It means base into height 2 into 5, or we can also say length into breadth plus again half, base is here 4 and 5 is here. It means 1 into height is here 5 centimeter. Solve it, we will get the answer. Here is the 5 plus 10 plus 2.5. It will be a 17.5 centimeter square. And this one is the centimeter, and this one is the displacement covered by the object. Means body इतना मूव करने में 17.5 मीटर कवर करेगा. If the distance is given here in the meters, why we have written the meter here? Because of the velocity is given here meter per second. The unit of the velocity is a meter per second. So what displacement we will get? We will get in the meter. Okay, that's all for the day. Now in the next class we will discuss about some NCERT questions of this chapter, and then we again start the chapter. The next chapter is the motion in a plane. बेटा वेक्टर हमने पढ़ लिया है, वेक्टर को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो क्योंकि एग्जामिनेशन में वेक्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं. सो होप सो आपको वेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट द कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बच्चों की पढ़ाई हो पाए. So learn these all topics, learn these all concepts. So because of these concepts are very important regarding to your JEE and NEET program also. अगर जो बच्चे नीट और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ. वहाँ पर ग्राफ से क्वेश्चन एक जरूर आता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.